और ये अपप्रचार किया और साथ में अपना टीम भी लेके आए थे। अब लामा जी ये बात के बारे में नहीं जानते थे। हमने बहुत सावध किया कि ये लोग जो है ये ठगों की टोली है। তো ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি অ্যাজ এ টুরিস্ট, ঠিক আছে, কিন্তু বাট আমাদের ধর্ম, আমি তো চাই ভাই, আমার প্রাণ যদি চায় বুদ্ধগয়াতে চাও। এখন ফাইনাল হিয়ারিং তে হবে, নেক্সট হিয়ারিং ফাইনাল হিয়ারিং হচ্ছে, আর আমি ফাইনাল হিয়ারিং এ আমরা জিতবো। ऑन द मेरिट वी विल विन। ये बातें जो है 10 मार्च के दिन पूरे देश में जगह जगह लोग अपने अपने बैनर पे अपने अपने ढंग से सावित्रीबाई फुले के स्मृति दिवस को मनाएं, उनके कार्यों को याद करें। तो ये क्या होगा कि एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और दूसरे दिन जो फैसला आने वाली बात है, बौद्धों का स्थान है तो बौद्धों को मिलना ही है। নমো বুদ্ধায়। প্রিয় দর্শক, আপনাদের মৈত্রীময় সান্ধ্য অভিবাদন জানিয়ে শুরু করছি আজকে এক বিশেষ আলোচনা। আপনারা জানেন যে গত 12ই ফেব্রুয়ারি 2025 মান্যবর আকাশ লামা এই তৃতীয় পর্যায়ে শুরু করেছিলেন মহাবোধি মহাবিহার মুক্তি আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে আপনারা জানেন যে শুরু করেছিলেন অনাগরিক ধম্মপাল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ভান্তে নাগার্জুন সুরাই সাসাই। আর তৃতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু করেন এই বাংলার সুসন্তান আকাশ লামা। আমরা ভয়েস অফ বহুজনের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং নমন জানাচ্ছি। আমি প্রথমে প্রশ্ন করতে চাই যে বিটি অ্যাক্ট বাতিল করো, পান্ডা পুরোহিতদের কাছ থেকে বৌদ্ধদের হাতে এটা ফিরিয়ে দাও, এর অনুপ্রেরণাটা আপনি কোথা থেকে প্রথম পেলেন? দেখুন, আপনি জানেন অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরামের হেড অফিস আছে শিলিগুড়িতে। আমাদের ধর্মতে 60+ আফটার রিটায়ারমেন্টই মনেস্ট্রিতে আসে, মানে ইয়াং জেনারেশন কমই নাই, মানে নাই। তো আমার চিন্তা ছিল ভাই, যখন দিমাগ কাজ করবে, শরীর কাজ করবে, তখন ধর্ম কাজ করবে। তো দ্যাটস ওয়াই টেকেন বিআরএস এট দ্য এজ অফ 40। ভারত স্বাধীন হওয়ার 70 ইয়ার্স হয়ে গেছে। অবাক একটা জিনিস কি, আমাদের মাঝখানে তো বড় বড় সংস্থা আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত বুদ্ধ জয়ন্তীতে ছুটি নেই। আর এখানকার প্রধানমন্ত্রী বলছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে বলছে हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। বুদ্ধ নেই। और बोलছে हम बुद्ध के देश से आए हैं, কিন্তু বুদ্ধ के देश में बुद्धिस्ट का छुट्टी नहीं होना ওয়েস্ট বেঙ্গলে। কিন্তু সেন্ট্রাল হলিডে তো আছে, কিন্তু স্টেটে নেই। তখন আমরা এই অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরাম গঠন করে সবাইকে একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এসে শিলিগুড়িতে র্যালি অনেক কিছু আমরা করেছি, সবাই সংস্থাকে নিয়ে। আর সবার সংস্থা নিয়ে একটা আমরা সাকসেস হয়েছি উইদিন 2 ইয়ার্স। বাবা সাহেবের নামে পুরো ইন্ডিয়াতে লক্ষ সংস্থা আছে, অনেক সংস্থা আছে কাজ করার জন্য। কিন্তু আমরা চিন্তা করেছি কি শুধু আমরা বুদ্ধিস্ট মানে রাইটস এর জন্য, হক আর অধিকার জন্য আমরা কাজ করব, আর সবাইকে একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসার চেষ্টা করব। ঠিক ঠিক ঠিক। 2010-এর আমি আমার মা বাবাকে নিয়ে গেছিলাম, আমার ছেলে ছোট ছিল তখন নিয়ে গেছিলাম, আমার ওয়াইফ গিয়েছিল। তখন বিহার আছে, মেন টেম্পল আছে, মেন বিহার আছে, ওখানে দেখবেন ওই ডোনেশন বক্সের সামনে ছোট্ট একটা করে শিবলিঙ্গ এর মতন বানায় রেখেছে। এখন যেরকম এখন আজকে যে অবস্থা আছে ওই ছিল না, কিন্তু ছোট্ট করেছিল তখন। তখন একটা পণ্ডিত এসে ঘন্টি বাজাতো, ওনার নাম আছে ব্রাহ্মণ একজন, কি নাম কি মিশ্রা, সঞ্জয় মিশ্রা। তো অনেক কিছু দেখলাম, কোনো অতিক্রমণ আছে। আমি চিন্তা করলাম ভাই, এত বড় বড় সংস্থা আছে আমাদের ভারতে, বাবা সাহেব বানাইছে সংস্থা, দ্য বুদ্ধিস্ট সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, সমতা সৈনিক দল, এরকম করে বড় বড় সংস্থা আছে, কেন মানে আগে আসতেছে না? 2023-তে 22 এপ্রিলে
আমরা বুদ্ধগয়াতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে মিটিং শুরু করলাম ওখানে। দেখতে চাচ্ছিলাম কি বিহারের বিশেষ করে যেখানে লড়াই আছে, যেখানে মহাবোধি মহাবিহার বিহার আছে, কিন্তু ওখানে অন্ধকার আছে, ওখানে লোক অন্ধকার আছে। they are least bothered about মহাবোধি মহাবিহার এন্ড বুদ্ধ বিহার। আমাদের হিমালয়ান বুদ্ধিস্টরা বিশেষ করে যে মহায়ানা বুদ্ধিস্টরা মানে আপনার নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকে বোধগয়াতে চ্যান্টিং করে, আর আফটার ফেব্রুয়ারি তারপরে মহারাষ্ট্র চলে আসে বোধগয়াতে। আর we are treated as a tourist in বোধগয়া। আমরা তো ভাই বোধগয়াতে টুরিস্ট, हम तो टूरिस्ट না তো ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি এজ এ টুরিস্ট, ঠিক আছে, কিন্তু বাট আমাদের ধর্ম, আমি তো চাই ভাই আমার প্রাণ যদি চায় বুদ্ধগয়াতে যাক। ঠিক আমার তো এটা, ইভেন জাপানে আমাদের জায়গায় বুদ্ধগয়াতে পা করে মানে শুয়ে না রাত্রেবেলা, তাই না? এত পবিত্র আমাদের জায়গা। সংসারে কোনো এরকম জায়গায় এরকম ব্যবস্থা নাই, কোনো একটা বিহার হোক বা মন্দির হোক বা মসজিদ হোক বা চার্চ হোক বা জৈন মন্দির হোক, ওখানে তো ওই ধর্মের লোকই তো থাকে কমিটিতে। আপনার বিহারে থাকুক আর আমাদের গুম্ফাতে আমরাই আছি। হ্যাঁ, বুদ্ধকে সবাই মানে আর সবাই আসতে পারে, কিন্তু এরকম না কি কমিটিতে তো ওই অন্য ধর্মের লোক তো থাকবে না, মসজিদে তো হিন্দু থাকবে না বা বুদ্ধিস্ট থাকবে না, মসজিদে থাকবে মুসলিম থাকবে কমিটিতে। কিন্তু এই 1949 বিটি অ্যাক্ট, বোধগয়া টেম্পল অ্যাক্টে আপনি যখন পড়বেন ক্লিয়ারলি বুঝবেন ইট ইজ টোটালি নট ফর বুদ্ধিস্ট। এই জ্বরটা কোথায় আছে? জ্বরটা হলো বিটি অ্যাক্ট 1949। এক্স্যাক্টলি। আর আর্টিকেল 13 তো ক্লিয়ারলি স্টেট করে দ্যাট whichever act that is before 26 January 1950 is void, শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু এই আর্টিকেল 13 এর ভায়োলেট হচ্ছে, এই 1949 অ্যাক্টে চলে আসছে। তো আমাদের টার্গেটটা ওখানে করলাম কি বিটি অ্যাক্ট 1949 কে নিরস্ত করা। ঠিক ঠিক। আর কমিটিতে পুরাপুরি থাকবে বুদ্ধিস্ট থাকবে, এই লড়াইটা আমরা শুরু করলাম। তারপরে ডিনচেন লামুজি যে আমাদের বুদ্ধিস্ট মেম্বার, উনি আসছে বুদ্ধগয়াতে, আর মিটিং করলাম বুদ্ধগয়াতে। দ্য অ্যাক্ট ইজ টোটালি আনকনস্টিটিউশনাল এন্ড আর্টিকেল 25, 26 এ পুরো ভায়োলেট হচ্ছে। বিটি অ্যাক্টের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রকমের মানে ঝোঁক রয়েছে, সেই ঝোঁকের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে 9 জন কমিটির মধ্যে 9 জন রয়েছে, তার মধ্যে 4 জন কেবল বুদ্ধিস্ট রাখা হয়েছে, আর 4 জন পান্ডা পুরোহিত। আর একজনকে রয়েছে যিনি ওখানকার জেলা শাসক, সেই জেলা শাসক বিটি অ্যাক্টে রয়েছে, তিনি একজন হিন্দু হতেই হবে, তাকে মুসলমান হলে চলবে না, ঈসাই হলে চলবে না। তো স্বাভাবিক কারণে আপনাদের মানে মনে কি এটা আসেনি যে এই অ্যাক্ট যদি থাকে তাহলে তো পুরো দখল হয়ে যাবে? মানুষের ধারণা, বিহারি ভাইদের ধারণা কি ভগবান বুদ্ধ বিদেশি হ্যাঁ, বুদ্ধিস্ট ধর্ম বিদেশি ধর্ম হ্যাঁ। শুনেন, ওদের মাথায় এরকম ঢুকাই দিয়েছে, ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক ঠিক ঠিক। विदेशी धर्म है एक नंबर। द्वितीय, बुद्ध से पहले यहाँ पर शिव आया था, शिव आया था। ठीक ठीक ठीक, शिव जी आया था, ये दिमाग में डाल दिया गया। তো এটা তো একদিনে হবে না পরিবর্তন, হাজার বছরের যে গুলামি আছে সেটা তো একদিনে পরিবর্তন হবে না। তো আমরা র্যালি করলাম, অনেক বড় র্যালি ছিল, অনেক মানে নিয়ার অ্যাবাউট 22 স্টেটস থেকে আসছে। আমি আহ্বান করছিলাম মানে আমরা জল দিতে পারবো আর কিছু দিতে পারবো না, আমরা এত বিরাট র্যালি হয়েছে। তারপর মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে সরকারকে, থ্রু ডিএম, চিফ মিনিস্টারকে, প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে দ্যাট বিটি অ্যাক্ট নিরস্ত হোক। আর পুরোপুরি কমিটিতে বুদ্ধিস্ট, আওয়ার ডিমান্ড ইজ দ্যাট ইট ইজ এ পিসফুল র্যালি। তারপর আমরা দিল্লিতে 2024-এ 7 জানুয়ারিতে আমরা একটা ন্যাশনাল মিটিং করলাম। बाबा साहब का बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर का जो सपना था प्रबुद्ध भारत, वो बना के ही रहेंगे, ये संकल्प लिया था। मानते 12 फरवरी 2025 वहां पे धरना शुरू किया था। पूरा दुनिया में ऐसा एक वार्ता कि अभी जो बहुजन आंदोलन है
ये बुद्ध आंदोलन से ही ये जुड़ जाएगा। पूरा दुनिया में ऐसा ही हो रहा था कि बुद्ध गया मुक्त करो, ये जो बीटी एक्ट रद्द करो, इसी के वजह से हम लोग जुड़ गया था। लेकिन मई महीना में ही इसका सूर बदल गया, इसका सूर पूरा बदल गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अप्रैल महीना में ही जो हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लिए अकाउंट बनाया गया था, ठीक, उस अकाउंट को फ्रीज करने के लिए उससे पहले अपप्रचार किया गया कि आकाश लामा के खाते में पैसा आता है, एकदम वो खर्चा नहीं करता है, वो खर्चा नहीं करता है, वन वे है, एटीएम जैसे वन वे आ रहा है, उसका ये नहीं कर रहा है। तो हमारे धरना में कुछ भंते लोग आए थे, तो वो लोग आकर के और ये अपप्रचार किया और साथ में अपना टीम भी लेके आए थे। अब लामा जी ये बात के बारे में नहीं जानते थे, हमने बहुत सावध किया कि ये लोग जो है ये ठगों की टोली है। तो लामा जी को मीठा मीठा बोल के वो कुछ कार्यकर्ताओं को चिवर पहना के लेके आए और फिर बाद में ये चाय ठीक से नहीं है, चाय में क्रीम नहीं है, उसके बाद में बटर नहीं और नान नहीं है, छोले भटूरे नहीं है, और काफी टेंशन देना शुरू किया। यहाँ लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, कार्यकर्ता आते हैं तो उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा खाना खाएगा तो डोनेशन भी देगा। तो ये इसमें फिर लोगों के बीच में जितने लोग बैठे थे उनके बीच में बोला है कि इनको अकाउंट में पैसे मत दो, इनको सामान वामान दे दो, लेकिन इनको पैसे मत दो और हमारे खाते में ट्रांसफर करो, जो भी देना है वो हमारे खाते में पैसा दो। फिर उन्होंने डुप्लीकेट कुछ पोस्टर छोटे छोटे बना के रास्ते से लगाए, मेन रास्ते से लगाए और अपप्रचार शुरू किया, ये लामा भगाओ, ये बहुत खराब है, ये दलाई लामा इसको बहुत करोड़ों रुपया दे के भेजा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, लामा लोग महाबोधि पे कब्जा कर लेंगे, महाबोधि पे कब्जा कर लेंगे लामा लोग। इस तरह से अपप्रचार शुरू किया, तोड़फोड़ किया अंदर ही अंदर। तो अप्रैल महीने में ही मेरे को भी मारने के लिए ऐसे हाथ वाट उठाया है, एक दो बार झगड़ा हो गया। अब बाद में जिम्बा अपने एके जिम्बा जी और जम्बू लामा सब लोगों के बीच में वो योजना बताया, 2000 भंते बना करके यहाँ से धरना स्थान से मुख्यमंत्री के वहां जाएंगे, बहुत बुद्ध के जमाने जैसे सुंदर सीन लगेगा। फिर बात चली कि भाई हम लोग चीवर जो है थाई टेम्पल से ले लेते, म्यांमार टेम्पल से ले दे, लंका वालों से ले ले। नहीं 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 नहीं, ये कलर में सब चीवर होना चाहिए। और बहुत सुंदर से ऐसे बातों बातों में ऐसे बताया। बाद में बात चला कि 2000 भंते लोगों के चीवर बनाना है तो उसका पैसा तो लाखों में बजट जा रहा है। तो फिर वो यहाँ से पटना जाने वाला बात है, तो मैंने मना किया, बोला कि हम लोगों को धरना करने को जगह दिया है कि यहाँ से पटना रैली लेके जाने के लिए दिया है, मैं तो धरना से जाने वाला नहीं है। तो बिगड़ गए। फिर बात आई जम्बू लामा, उन्होंने बोला कि ये विजिबल भी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है, इतना लोग लैट्रिन कहाँ करेगा, इतना लोग का खाना कहाँ से होगा, कैसे होगा। फिर हमारा धरना प्रभारी इधर में सुनीत पाल बनते हैं जो बिहार के हैं, उनका गांव गांव में नेटवर्क है, परिचय भी है। तो वो लोगों ने बोला कि जगह जगह लोगों को टीम बना करके खाने का बंदोबस्त करेंगे और लैट्रिन का बंदोबस्त करेंगे। तो ये बोला नहीं नहीं, हम लैट्रिन का गाड़ी साथ में लेके जाएंगे और खाने का लंगर भी लेके जाएंगे। तो ये कोई राजा महाराजा का वो तंबू लेके जाने वाला, मैं बोला कि ये कुछ तो भी ठगी प्रोग्राम है, लोगों को मूर्ख बनाने का है। तो कम करते 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 चीवर का भी बजट कम करते करते लाया कि इतने लोग चीवर पानेंगे, इतना होगा। तो उसके लिए हमने घोषणा की उपासक लोगों से कि आप चीवर दान कीजिए। तो चीवर और झोला और वो सारा बनाएंगे तो लगभग 2000 लगेगा। तो हमने घोषणा किया कि 2000 लगेगा। तो दानदाता लोगों ने कोई कोई चीवर के लिए दान दिया। अब वो चीवर इन्होंने मंगाया, इनका कोई आदमी चीवर उधर से भेजा है। वो चीवर इधर आने के बाद ये लोग 180 चीवर का पैसा भी लिया।
वो लोगों को आने जाने का, ट्रेन का बुकिंग का भी पैसा ले लिया लामा जी से। अब जो चीवर आए हैं, तो चीवर लाने के बाद जिस दिन पटना के लिए रैली लेके जाना है, ये लोगों ने चीवर लिया लेकिन किसी को भी चीवर पहनाया नहीं है। अच्छा। और चंद्र कीर्ति भंते ने वहां दीक्षा अपने बोधि वृक्ष के नीचे लोगों को ले गया, कुछ लोगों को चीवर पहनाया, उधर से लेके आया, और ये लोगों ने प्रोग्राम, गाड़ी 4 बसें तय किया जाने के लिए, तो वो बस में भी ये लोग कोई चढ़ा नहीं है और पटना के लिए नहीं गया है। फिर जो हमारे धरने के लोग थे वही बसों में भर के और लामा जी लेके चले गए यहाँ से रैली निकाल करके। तो ये लोग रैली में भी शामिल नहीं हुआ, और ये लोग जहां पर हमारा धरना है वो जगह पे बढ़िया सुंदर ऐसे लोगों को अलग अलग बिठाया, पूरा कैमरे लगा करके सेटअप खड़ा किया, फिल्म बनाने के लिए सब तैयारी किया। और रैली में से कुछ लोग वापस आया है, तो वापस आया है तो उन पे पुष्प का वर्षा करने का ये लोग प्रोग्राम बनाया। तो अच्छा। मैं उठ करके चिल्लाया जोर से और बनते लोगों को सबको भगा दिया, बोला जाओ अपने अपने जगह पे बैठो, अभी हमारा एक बस नहीं आया है, अभी आकाश लामा और वो जो टीम के लोग हैं वो अभी आए नहीं है, और पुष्प वर्षा भी नहीं होगा, शाम को करेंगे जब सब लोग आ जाएंगे। तो उनको बहुत इंसल्ट जैसे लगा, डांट के हमको सबको भगा दिया बोल के अपना जगह पे बिठा दिया। तो वो अपनी जगह पे बिठाने से पहले ये लोग मेरे को इंटरव्यू लिया, मैंने स्वागत सत्कार करके बिठा के और पूरा फिल्म बनाया। फिल्म अच्छा। बना के बाद में फिल्म वगैरह सारा बन गया, के बाद में ये वाला मामला हो गया जब मैंने वो डांट के सबको बिठा दिया वाला। तो ये लोग प्लानिंग से ये पूरा प्रोग्राम को चौपट करने के लिए, ठगी करने के लिए आया हुआ था। और बाद में 9 मई को रात में गुंडे लोग लेके 11:30 बजे के बाद आ करके उधर में हम लोग बैठे थे, तो वही झगड़ा लड़ाई करने के लिए आया था, हाथापाई करने के लिए आया था। ये लोग अपना सेटअप लगाया, वीडियो बनाया और वहां बोल दिया लामा भाग गया, 2.5 करोड़ रुपया ले लिया, ये चोर है, प्रज्ञाशील चोर है, आंदोलन खत्म हो गया, ऐसे ऐसे चिल्लाया। इसके पहले तो पुलिस स्टेशन में भी हमारा झाझा हुआ, कुछ दिल्ली से बनते लोग आया, कुछ भिक्षुनी आया, वो लोग अपनी तरफ से इसको तोड़फोड़ के लिए आया था। लामा ने ऐसे क्यों बोल दिया कि धरना की संख्या कम करो, धरना ये खत्म करो। तो पॉलिटिकलाइज लोग उधर से पहले से बन के आया वाला, उनके समर्थन वाला लोगों ने हम लोगों को बदनाम करने के लिए काफी कुछ साजिश किया। और उस साजिश की वजह से ये लोगों के पास में यूट्यूबर थे कुछ, तो इन्होंने सोशल मीडिया में इधर उधर झूठी अफवाहें फैला करके काफी कुछ गड़बड़ी किया। तो बाद में वो सीज फायर वाला मामला आ गया, फिर हमारा धरना कंटिन्यू किया। तो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा अपने स्थान पे मनाया, लेकिन ये लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो मॉब आया था उसको लेकर के आया है, धक्का मुक्की करने का कोशिश किया है समता सैनिक दल जवान लोगों को, और मंच अपने हाथ में लेने का कोशिश किया, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुआ। उधर चैंटिंग प्रोग्राम चंद्र कीर्ति भंते जी के नेतृत्व में चलते रहा। और उस दिन में हम लोगों को गवर्नर के साथ में बैठक था, तो हम गवर्नर के साथ बैठक करने निकल गए थे। तो काफी वहां पर झंझटें करने की कोशिश की। तो जनता के बीच में ये लोगों ने जो जहां जहां से डोनेशन उठाया था, लोगों को मूर्ख बना के लाया था, तो उन लोगों ने हम लोगों को विलन बना करके पेश किया, ये मास्टरमाइंड है, इसका मेरा भी फोटो रात में 11:30-12 बजे लिया। हम लोग एक चिट्ठी लिखा था सब पुलिस को कि जान को धोखा है, हमारा एक भंते ने लिखा क्योंकि उसको धमकाया था। तो वो लोगों ने मास्टरमाइंड बोल के ये लोग है, इन्होंने ऐसे किया और भंते वीणाचार्य को जेल में घुसा दिया, हम पर आरोप लगाया। जबकि वो उस दिन जेल में घुसने के पहले वो भाग के आया था धरना में, तो हमने बड़ा बड़ा हेलोजन वगैरह बंद किया, तो उसने घेरा डाला, लामा जी से बातचीत हुआ, उसको उधर अंदर में सुलाने की कोशिश किया, वो वहां से भाग गया। तो उस तरह से पुलिस लोगों से बोल के आधार जांच करो, तो जो भंते बना के लाए थे वो लोग सिर्फ धीरे धीरे भाग गए आधार के नाम पे। काफी कुछ धरपकड़ जैसे हो रहा था मामला। तो ये कुछ घटनाएं जो है उस समय की थी, तो बहुत कठिन वाली मामला था। हमारी परीक्षा भी थी और धरना को उखाड़ने के लिए बहुत जोर दबार
सरकार की ओर से लगाया गया था। और जब जेल में उसको डाल देने के बाद में हमको बहुत गालियां पड़ी पूरी जगह में कि महान भंते को जेल में डाल दिया और ऐसे किया, और ये लामा बड़ा खराब है, प्रज्ञाशील खराब है, धरना खत्म हो गया है। काफी इस तरह से मामला चला है। 3 दिन मीटिंग जो दिल्ली में होने वाला था वो तो आपने तय किया कि हाँ 3 दिन हम लोग वहां पे रहेंगे। एडवोकेट भानु प्रताप जो है वो एडवोकेट भानु प्रताप ने और राजेंद्र पाल गौतम ने ही बोला कि पूरा अगली मीटिंग लेनी है। तो लामा जी बोले डेट देखो भाई, तो डेट देखने की बात आई तो वो डेट बोला है, लेकिन वहाँ मीटिंग जो है वो करनी नहीं दिया ठीक से। वो चिल्ला चिल्ली कर रही थी भिक्षुनी जो है। नहीं, उस मीटिंग में हम थे, उस मीटिंग में हम थे। हम तो चाहता था कि प्रज्ञाशील भामते और आकाश लामा जी आए, लेकिन प्रज्ञाशील भामते और आकाश लामा जी नहीं आए। 2 दिन की आकाश लामा जी मीटिंग तय किया, 3 दिन का मीटिंग तय किया, लेकिन आकाश लामा जी नहीं आया। क्यों? अच्छा, मैं बता रहा हूँ 13 तारीख को मीटिंग किए थे सिक्किम हाउस में। वहां पर भानु प्रताप सिंह जी आए थे, जो नया नया चेहरा आया था। तो हमने बोला डेट बताइए, तो शायद मेरे ख्याल में 5, 6, 7 जून तय की गई। वो स्लीपिंग बुद्धा है, स्लीपिंग बुद्धा आप जानते हैं, भंते आर्यपाल मेरे को पहले बोल दिया था कि ये धरने को तोड़ने के लिए मीटिंग चल रही है। ठीक 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 ठीक। साजिश उन्हीं के बुद्ध प्यार में रची जा रही है। और कौन कौन नाम ले रहे आप मालूम है। अभी तो बिनाचार्य हुआ और करुणाशील राहुल और बिलास खराब 3। तो आर्यपाल भंते से आप थोड़ा पूछ लीजिएगा कभी। तो अभी आपका दिल्ली का जो है, तो वहां पर मीटिंग में प्रज्ञाशील भंते वहां से, क्योंकि बहुत लापड़ा हो गया था, गुंडा सब लेके आया था। क्या नाम, हम तो जानते भी नहीं थे बाउंसर होता है क्या है। उस धरने में हमने देखा बाउंसर भी भंते लोग। बाउंसर दो बगल में रहता है, पीछे रहता है, सामने रहता है। 7 बाउंसर लेके आया था। तो वहां पर कोई हल्ला बहुत हुआ। तो हमने कहा ठीक है, डेट देखो 5, 6, 7 शायद जून ही होगा। लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का कोई कहीं भी जाना होता है तो कुछ भी करना होता है तो पहले इंटरनल मीटिंग होती है। इसमें हम लोग का टीम है एक, जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा माने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रबोधी पाटिल जी भी है। समता सैनिक दल के नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल कन्वेनर सुनील सारीपुत्र जी भी थे। आप कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, सुनील सारीपुत्र जी से। मैं हमारे घर में आए थे एक बार। अच्छा, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धम्म प्रकाश भारती जी एकदम हाँ, तो वो भी टीम में है। और आपका महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी। तो सभी से हम लोग डिस्कस किए। तो दिल्ली जाना बोल रहे, समन्वय समिति ना कुछ ऐसा कुछ बनाना है, तो चलिए जाते हैं। देखिए, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन या महाबोधि में पूरी कमेटी में बौद्ध हो, ये संघर्ष को जीतने के लिए जो जो हथियार चाहिए सब करते हैं हम लोग। एकदम। आप जानते, मैं नागपुर भी गया था, वो भी पूरा टीम से मीटिंग करके गया था। तो क्या हो गया कि आप जानते हैं कि मेरे नाम पर, भंते प्रज्ञाशील भंते के नाम पर और के बौद्ध जी के नाम पर एफआईआर है। 5 तारीख को डेट मिला कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए। भंते प्रज्ञाशील भंते को, मेरे को और के बौद्ध जी को 5 तारीख कोर्ट में हाजिरी लगाना ही है। तो हम लोग ने तय किया ठीक है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, प्रज्ञाशील भंते नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोग एक टीम भेजेंगे नेशनल प्रेसिडेंट जम्बू लामा जी को, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, उनको भेजेंगे। और चीफ एडवाइजर AK जिम्बा जी को भेजेंगे। तो दोनों गए भी, मैं नहीं गया क्योंकि हमारा 5 तारीख को अटेंड करना था गया कोर्ट में। ठीक, लेकिन उसी दिन ही रैली था जंतर मंतर में। तो रैली था, तो वहां से
जंतर क्योंकि मैं सोच रहा था कि 5 तारीख अटेंड करके मैं 6 तारीख को चले जाऊंगा दिल्ली, मेरा सोच ही था। लेकिन 5 तारीख को वहां से AK जिम्बा जी, जम्बू लामा जी हमको रिपोर्ट देता है कि वहां तो महाबोधि महाविहार मुक्ति का तो बात हो ही नहीं रहा है, खाली धरने के बारे में बात हो रहा है। आप भी थे ना वहां पर? एकदम। दूसरी बात तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है ये, उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनानी है, वो डिस्कशन नहीं हो रही है। लेकिन ये है, वो है, नामा चोर है, ये है, इस प्रकार का डिस्कशन हो रही है वहां पर। और जम्बू लामा जी को बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन मेरे को एक चीज बताया कि आशीष बरुआ जो उनको कन्वीनर रखे थे दिल्ली का, उसने थोड़ा सेफ गार्ड किया जम्बू लामा जी और जिम्बा जी को। वो थोड़ा बुजुर्ग है और रिपोर्टर लोग पूरा घेर लिया। वहां तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। তখন দেখলাম প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই ও বানাই দিয়েছে। তো টোটালি আমি বুঝে গেলাম যে প্ল্যানটা আর্যপল ভাঙতে আমাকে বলছিল, ওই পুরো প্ল্যানিংটা মিলতেছে। ও বিনাচারে ফায়ার করেছিল ওই গাড়িটা। একজন অশোক মেন্ডে বলে একটু বিজেপি RSS কাজ করে, বহুজনের লোক মহারাষ্ট্রতে, উনি ফিট করেছিল। জেল যাওয়াতে কত টাকা পাবে কি পাবে না এসব আজকে চিন্তা করেন না আপনি। আমি সকালবেলা যখন রাত্রেবেলা ওনাকে ধরা পড়লো, আমি বলছিলাম আপনি এখানেই থাকেন, ধর্নাস্থলে থাকবেন, আমি বাঁচাবো আপনাকে, এখান থেকে যাবেন না। কিন্তু রাত্রেবেলা ওখান থেকে পালিয়ে গেছে। 1 নম্বর, উনি রাত্রে 12টা 1টার সময় বেড়ে গেল। আমি পুরো অন্ধকার করে দিয়েছিলাম, পুলিশ পুরো মানে ওখানে পুরো ঘিরে দিয়েছিল। এনিওয়ে, আজকে যে কেসটা লেগেছে ম্যাক্সিমাম 3 দিনে ওটা বেরিয়ে আসার কথা। ঠিক ঠিক। আর ম্যাক্সিমাম 10 ডেজ, কিন্তু বেরোতে চায় না। আর ওই ভিডিও আমি ভিডিও পেয়েছি ওখান থেকে কত টাকা লেনদেন হয়েছে। ও, একটা পুলিশ কমিশনার আছে, উনি আমাকে বললো এই কেস তো 3 दिन में हो जाना चाहिए। আর আমি সকালবেলা আমার অ্যাডভোকেট যে আছেন অশোক বর্ধন জি, ফোন নম্বর যদি লাগে তো ওনার নম্বরটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। উনি বলেন জেসে भी उसको जेल से निकालिए, কিন্তু ওর বেরোতে চায় না। তো যা হোক, দেখেন আমি জানি সত্য কি एक दिन जीत होगा। একদম 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 সহি। और শান্তি का जीत होगा। একদম। তো আমরা ধর্ণা ওখান থেকে করে দিয়েছে, উঠাই দিয়েছে, তারপরে আমরা কন্টিনিউ। এখন ক্রেডিট কে নিচ্ছে নিক, আমার দেখার দরকার নাই। আপনি মানেন বা না মানেন, 2012 থেকে রিট পিটিশনে কোনো শুনবাই, কোনো হিয়ারিং নেই। তো 19 মার্চ 2025-এ আমার নামে অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরামের বিহাফে ইন্টারভেন অ্যাপ্লিকেশন আমরা জমা করেছেন। ঠিক ঠিক। সুপ্রিম কোর্টে আমি চাইলে তো আমি আলাদা করে রিট পিটিশন দিতে পারতাম। बंते जी, अभी हम लोग शुरू किया था एक प्लेटफॉर्म में, मई महीना में 2 टुकड़ा हो गया, जून में 3 टुकड़ा हो गया, 3। इसमें पैदा हुआ एक संगठन जिसका नाम है बुद्धिस्ट समन्वय संघ। बुद्धिस्ट समन्वय संघ कोशिश किया था कि सबको एक मंच में लाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। नागपुर के बाद हम देखा है कि एक किस्म की ये आकाश लामा जी मशाल मिছিল कर रहा है और भांते विनयाचार्य जेल से बाहर आने के बाद एक रोड शो कर रहा है। मतलब है ये एक आंदोलन शुरू किया था हम, एक संघ, ये 4 किस्म का टुकड़ा हो गया, टुकड़ा हो गया। तो अगर ऐसा टुकड़ा हो जाएंगे हम लोग, तो ये जो हमारा मकसद है बीटी एक्ट रद्द करना और महाविहार को अपना लेना, ये कैसे संभव होगा? इस विषय में ना टुकड़ा करने के लिए काम पे लगाया वाला जो लोग हैं,
मेन इसका जो इंद्रेश कुमार आरएसएस का जो प्रचारक है, ये एकदम। स्वयं ये लोगों को काम पे लगा के टुकड़े कराया है। और जो हमारा धरना उखाड़ने के बाद 3 दिन तक के यहाँ डेल्टा होटल में ये लोग मीटिंग किया है, अच्छा, जिसमें प्रज्ञाजीत भंते, वो इंद्रेश कुमार आरएसएस का, लोकल के कुछ भंते, ये सब मिलकर के डेल्टा होटल में बैठक किया है। उसके वीडियो और फोटो मैंने अपने फेसबुक पे शेयर किए हैं सारे के सारे। ये लोग मीटिंग में बैठे हैं। बाद में एक इनका चुपचाप मीटिंग हुआ है मगध यूनिवर्सिटी में। मगध यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक मिस्टर शाही है। उस समय में इंद्रेश कुमार बोला है कि हमको ये धरना तोड़ने के लिए कोई चांस नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से शासन प्रशासन सब लगा के इसको हम तोड़ने में सफल हुए। तो हमारा वहां पे यहाँ मगध यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर है, हेड डॉक्टर है, ये उसमें उपस्थित था। दूसरा हमारा 2-3 परिचित लोग है, वो भी उस मीटिंग में उपस्थित था, जो मेरे को आके बताया कि भंते जी आपका धरना को तोड़ने के लिए इसमें सरकार तो पूरा इन्वॉल्व था ही था, पुलिस प्रशासन भी था, लेकिन ये जो भंते लोग बना के भेजे थे ये लोग इसमें तोड़फोड़ में सफल हुए। तो ये सबूत के साथ साथ चीज मिल गया। इनसे जब पुलिस स्टेशन में हमारा जो विवाद हुआ तो वो लोग पुलिस फोर्स बोल रहा था कि यहाँ मिलिट्री कैंटोनमेंट है और युद्ध चल रहा है, इधर महाबोधि टेम्पल पे 2 बार अटैक हो चुका है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास में है, आपका तंबू में कोई घुस जाएगा, कोई बाहर का अभी एक बांग्लादेशी पकड़ा हुआ है, ऐसे आपके तंबू में कोई घुस जाएगा, कोई बम डाल देगा, कोई कुछ करेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा, ऐसे प्रेशराइज कर रहा था, बार बार बोल रहा था। मैं बोला हम जानते हैं पुलिस लोग ही प्लांट करता है, ये महाबोधि विहार पे जो है ये बम कांड किया है, ये सब आरएसएस लोग ने किया, हम जानकारी है। तो बोला ये लोग कराएंगे। तो बहुत बाचाबाची हुआ और उसके बाद में मामले को किसी तरह से ठंडा किया था। तो ये कोर्ट में भी भंते सुरेश ससाई जी ने जो मामला डाला है, मैं भंते सुरेश ससाई जी के पास से प्रवर्जित हुआ 93 में, इसलिए वो मेरे गुरु है, मैं सब जानकारी रखता हूँ। और आंदोलन में जिन्होंने ज्यादा ताकत दिया तो भंते ज्ञानेश्वर कुशीनगर के जो थे, वो मेरा उपसंपदा वगैरह उन्होंने करा के महाबोधि विहार में बिठाया, तब मुझे इंचार्ज बना के। अच्छा, तो ये सारी तो बड़े गुरु लोगों का आशीर्वाद से मेरे को यहाँ महाबोधि विहार का डे टू डे का मामला देखने के लिए भिक्खू इंचार्ज बनाया था। फिर सुपरिटेंडेंट एक यहाँ बैनर्जी थे गया में, प्रोफेसर, वो रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी, वो बार बार बोलते थे कि ये सेक्रेटरी को, माने सुपरिटेंडेंट को तो पावर होते हैं, ये भिक्खू इंचार्ज कहाँ से, ये पोस्ट तो हती नहीं है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला जो था उसको कंडीशनल विड्रॉ किया था, तब ये बुदेश का सेक्रेटरी बनाया था। तो ये बैकग्राउंड उस समय का रहा है और ये पुराना लेकर के हम जो अभी काम कर रहे हैं, तो इसमें तोड़फोड़ करने वाले लोगों को हम बहुत लंबे समय से जानते थे, लेकिन ऐसे हो गए इतना मालूम नहीं था। और जो बुद्धगया में भंते बैठे हुए हैं ऑल इंडिया भिक्खू संघ में, इन्होंने पहले दिन से ही जो इनकी भूमिका जो थी वो खुल करके सामने विरोध में आई थी और अभी भी विरोध में ही है। अगर हम एक साथ मिलके आवाज नहीं उठाएंगे तो ये जो लड़ाई आपने शुरू किया था 3rd फेज में, आपने और भंते प्रज्ञाशील ने, ये संभव नहीं होगा। तो इसके बारे में क्या सोच रहा है और जो आने वाला वक्त में जो हमारा कर्मसूची लेना है, जो एक्शन लेना है, ये कैसे होगा? पहले हम लोग क्या देखते थे कि बुद्धिस्टों का अनुष्ठान बुद्ध विहार में होता था और कहीं दिखाई नहीं देता था। अभी चारों तरफ दिखाई दे रहा है बुद्धिस्टों का। सेंट्रल गवर्नमेंट घोषणा करता है कि 10,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट बुद्धिस्ट सर्किट के लिए, वहां बुद्धिस्ट चैंटिंग चल रहा है बुद्ध गया में। पहले तो हम लोग इंडियन बुद्धिस्ट दिखाई नहीं देता था एकदम। আমার মামা কি বলে জানেন, উনি থাকে পন্থাবাড়ি খারসেঙ্গের নিচে। মহারাষ্ট্রে বুদ্ধিস্ট আছে, উত্তরপ্রদেশে বুদ্ধিস্ট আছে, উনি চিন্তা করতো শুধু আমাদের জায়গাতে বুদ্ধিস্ট আছে। আমি মামাকে বললাম, হ্যাঁ আমি একটু ইয়ার্কি করে বললাম, আপনি যাবেন শীতকালে আর মারাঠি আসবে সামারে, তাপ দেখা হবে না।
আমাদের থেকে অনেক বেশি আছে महाराष्ट्र बुद्धिस्ट। तो कम से कम ये लामा ने कोशिश किया कि थेरावाद हो, महायाना हो, सबको जोड़ने के लिए। आज कम से कम लद्दाख में हो, दार्जिलिंग में हो, सिक्किम में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, जय भीम का नारा लग रहा है। একদম একদম। আজকে পর্যন্ত কোনো হিয়ারিং ছিল না, কিন্তু যখন আমরা ওই 19th মার্চে যখন মানে ইন্টারভিউ অ্যাপ্লিকেশন দিলাম, ইমিডিয়েটলি উই গট দ্য ডেট অফ 16th মে, ঠিক 16 মে। তো কন্টিনিউ হচ্ছে 16 मई থেকে फाइनल हियरिंग। आज 17 फरवरी तो হয়েছে। 17 फरवरी में भी हियरिंग था। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि सुलेखा ताई ने मेरे को बोला, लामा जी आपको रिट पिटिशन डालना चाहिए। मैं तो रिट पिटिशन डाल रहा हूँ। मैंने किस आधार पर रिट पिटिशन डाल रहे हैं? बोला राम मंदिर का रेफरेंस दे रहा है, मतलब जो अयोध्या का राम मंदिर का। और सुनवाई शुरू हो गई 16 मई से, फिर नेक्स्ट डेट था 29 जुलाई। लेकिन 29 जुलाई होने से पहले नेशनल पेपर में एक न्यूज छूट जाता है कि महाबोधि महाविहार का केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाँ 30 जूने पेपर आउट হয়েছে। अब पेपर जो नेशनल पेपर के मालिक के আপনি জানেন, ন্যাশনাল চ্যানেলের মালিক কে জানেন আপনি? আমি বলতে চাই না। পুরো পেপারে দিয়েছে। সবাই আমাকে ফোন করতেছে কি आकाश लामा जी तो केस खारिज हो गया महाबोधि मुक्ति का। তারপরে আমি সুপ্রিম কোর্টে গেলাম। আমি দেখলাম কি সুলেখা তাইর যখন ভ্যাকেশন বেঞ্চ ছিল, কারণ তখন সুপ্রিম কোর্ট ভ্যাকেশনে ছিল, ওই ভার্ডিক্ট দিয়েছে। কার উপরে দিয়েছে? ওই সুলেখা তাই যে জমা করেছিল পিটিশন, ঠিক 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 ওর উপরে। মিন্স শি ইজ অলসো ইনভলভড টু ডিসমেন্টল দিস মুভমেন্ট। ঠিক ঠিক ঠিক। আমি বললাম আমাদের তো হয়নি, আমাদের চলছে। एक साजिश है, एक साजिश है। मैं बोल रहा हूँ मरने से पहले हम लोग महाबोधि मुक्ति करके ही मरेगा, इतना आपको बता दूं। खाली हम लोग एक यूनाइटेड रहे और पूरा दिमाग से काम करे। एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट। যেরকম ফাইনাল শুরু হবে আমরা জিতবো। We are not against any religion or any caste. We are against the system. Exactly. We want that our Mahabodhi Mahavihar should be handed over to Buddhist. এখন এই যে 22 তারিখে বুদ্ধগয়াতে একটা প্রোগ্রাম রেখেছে হর্ষপতি ভান্তে, আমার ছবি লাগাই দিয়েছে ছোট্ট করে। উনি বলতেছে कि শুধু চেয়ারম্যান, শুধু লামাজি শুধু চেয়ারম্যান खाली बुद्धिस्ट चाहिए अभी, ये लोग देगा नहीं। अब इसे रामदास अठौले जी आ रहा है, अब सिर्फ चेयरमैन बुद्धिस्ट आएगा मतलब 5 जन हो जाएगा, तो 5 होगा तो 5:4 होगा। हम बोले नहीं, हम लोग को पूरी बुद्धिस्ट चाहिए, चेयरमैन से लेकर पूरी 9 में से 9 बुद्धिस्ट चाहिए। तो 17 তারিখে আমি যা দেখলাম আর 30 অক্টোবরে আমি যা দেখছিলাম, we are in the verge of winning। অনেক বড় পার্ট আছে, हमको खुश नहीं होना है, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर में है, भीतर में है। नंबर 1। नंबर 2, जिसके साथ हमारा फाइट है, they are much more powerful in every sphere, politically, socially, economically, सब में। और वो डायरेक्ट काम नहीं करता है, बहुत सोच के आगे बढ़ना होगा। আমি আপনার চ্যানেলের মারফত সবাইকে রিকোয়েস্ট করতে চাই, আগ্রহ করতে চাই कि 10 मार्च सावित्रीबाई फुले विद्या की देवी की पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस है 10 मार्च में। 10 मार्च में सभी अपने अपने जगह पर, अपने डिस्ट्रिक्ट पर, ब्लॉक में, गांव में एक दिन का धरना करे। आपका बैनर में कीजिए, ऐसा जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का बैनर में हो। 10 तारीख 10 मार्च में पूरे देश भर, पश्चिम बंगाल में भी गांव गांव में एक दिन का धरना हो, और हम लोग एक रहेंगे, আমরা নিশ্চয়ই জিতবো, এটাই আমি বলতে চাই। আর আমি তো এত প্রণ করে আসছি বাড়ি থেকে कि जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा हम सांस लेने वाले में नहीं है।
या तो मेरा लाश जाएगा या तो बीटी एक्ट 1949 निरस्त करेंगे, ये एक संकल्प लिया है। अभी जो 10 मार्च का दिन हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि बहुत से नॉर्थ ईस्ट में, लेह लद्दाख में सावित्रीबाई फुले के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं जानते हैं। एकदम। भारत में शिक्षा के लिए उन्होंने प्रथम शिक्षिका बन के एजुकेट करने का काम किया। ये ऐतिहासिक जो सत्य है वो चीजों को हमारे लगभग 80% लोग जो है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में नहीं जानते हैं। अभी बाबा साहब का स्टैचू बिठाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बात आई है, तो वहां भी लोग जो है बाबा साहब के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं रखते, केवल संविधान निर्माता इतना ही जानते हैं। भारत में बुद्ध धम्म को जिंदा करने, जागृत करने या फिर मेन लैंड में बुद्धिज्म को रिवाइव करने के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये बातें जो है 10 मार्च के दिन पूरे देश में जगह जगह लोग अपने अपने बैनर पे, अपने अपने ढंग से सावित्रीबाई फुले के स्मृति दिवस को मनाएं, उनके कार्यों को याद करें। तो ये क्या होगा कि एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी, और दूसरे दिन जो फैसला आने वाली बात है, ये तो बौद्धों का स्थान है, वो तो बौद्धों का स्थान है, तो बौद्धों को मिलना ही है। আপনারা আলোচনা শুনলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ভান্তে, প্রজ্ঞাশীল এবং আমাদের লড়াকু নেতা আকাশ লামাজি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আশা করছি 11 মার্চ একেবারে অন্তিম ফয়সালা আসতে চলেছে, এরকম ধরে নিয়ে আসুন আমরা 10ই মার্চ প্রত্যেকটা স্টেটে এবং বিশেষ করে গাঁও গাঁও এই সাবিত্রী ফুলের মহাপরিনির্বাণ দিবস পালন করি এবং সেখান থেকে আওয়াজ তুলি, বিটি অ্যাক্ট বাতিল করো এবং বুদ্ধগয়া বুদ্ধদের হাতে ফিরিয়ে দাও।